So Shubham, Jayan, I'm recording this session. Do you have any Jain. problem? And I put it on YouTube. It's fine No, for I you. do not have. I do not have any problem. You can. Okay, great. So in this video, we're going to know about your experience regarding your PSB and FSB, your whole journey, right? And before I proceed with that, I would like to know a little bit about yourself, like what you're doing currently. What is a graduate, like what is your education qualification, and that was your what attempt, right? So just you can start, please. By your name. Yeah. Deepak, my name is Shivam Singh. I have done my graduation in Bachelor of Science. After then, I started preparing for the Defense Services examinations. I have appeared for the CDS OTA entry in the January. And after that, I appeared for the FSB. I have attempted it for twice. Okay, this Indian Coast Guard, right? Yeah, this was my second attempt. It was in the FSB. Okay. So tell us like about something about PSP, how it went, from your end, like on what date you reported, how many people reported over there, and all that. Actually, my PSP was scheduled on 17th January, and that day around 90 guys from the morning batch was there. And first of all, we had the document verification part, and after that, we were asked to sit in a room. Perhaps it was on the first floor. And after that, we were asked to go to the. We were given OMR sheets actually, and our names were written over that. And then we were asked to go to the room where the test will be conducted. And after the test was conducted, we were asked to again wait for around 30 minutes, and then the results were announced. So results were announced, we were allotted test numbers, and then the pictures were shown. Group discussions happened. In the first of all, they give you exactly 10 minutes for the group discussion. After the group discussion is over, not over, I mean, when the group discussion is not able to get a conclusion, then they will ask you to divide the group. And division happens. After that, again, 10 minutes are given. And after that, the results are announced. Okay, so what was the picture which shown to you? The pictures was shown was actually it was a real picture. It was just made black and white. So there was a person who was having whose age was around 50 years, and he was standing, and there was a woman with that person. She was also standing there, and she was giving something like some cloth or something to a poor person who was standing in front of her. Yeah, so this was the picture. So which board you have been like? It was Noida, right? Sorry. Yeah, Noida it was board. Noida. Okay. Yeah. So how many people recommended from that particular batch? 12. Okay, 12 people cleared the written or the total FSB. From the morning shift, I do not know about the later one. Total 12 people cleared from your batch, like FSB, they made it to FSB, right? Okay, so I think most of the people know about all those things about PSB, already uploaded a lot of videos, right? So we'll start with the FSB, right? So you tell from your end everything, right, from beginning to the end. I'll ask some questions that pop up in my mind in between, okay? And the thing is that try to tell in the way that people can understand. You're getting my point. You can use any language, Hindi, English, not a barrier. Yeah. When like you're free to use any language, whatever you feel like, no issues, right? You can good to go. So we'll start with the reporting date. उन्होंने क्या फॉर्म भरवाया आपसे, and how you prepared for that. क्या आपने पहले से PI की फॉर्म की preparation की थी कि नहीं की थी, like, and all those things, small details, so that we can put the pull on slowly, and how you gave your that, what went wrong in between. It's not like a rapid fire selling you in a single shot, right? Okay. Yes, Shiva, please proceed. Yeah. So let me use the Hindi language. Sure. It would be more comfortable. Yeah. Okay. So मेरी reporting थी 6th March को. So at that day around 60 people reported. Of them, around 10 were freshers, and then one times conference out, 2 times conference out, 3 times and hardcore repeaters. So first of all, 6 March को reporting हुआ around 3 p.m. 3 p.m. पे reporting हुआ. उसके बाद हमें अंदर लेके जाया गया. वहाँ पे चेक इन होता है. गेट पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना डेट वगैरह, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा. उसके बाद हमें वेटिंग रूम में लेके जाएंगे. फिर वहाँ पे हमें
एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और आपने पीएसबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे आपने जो डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट कर सके थे, you will have to take it at that time, like character certificate, application form. एक I would like to suggest some people कि maximum were not having the application form. तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीएसबी में भी मांगते हैं और यहाँ पर भी मांगते हैं। अच्छा, तो एफएसबी में आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर ही जाना है? नहीं, अगर आपने सबमिट कर दिया तब नहीं, पीएसबी में अगर कर दिया तब नहीं, बट अगर आपने वहां पे नहीं किया तो वो नोट करके रखते हैं। शिव थोड़ा पीछे होकर बैठ रहा है, थोड़ा आपका पूरा फेस कट रहा है। श्योर। कैमरा थोड़ा टिल्ट कर लो तो अगर हाँ ठीक, हाँ सही। तो अगर आप ने पीएसबी में जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, वो इनका उनके पास एक लिस्ट रहता है कि इस लड़के ने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, तो आपका वो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट होगा अगेन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम 3 से 7 तक चलता है, शाम के, इवनिंग के। तो इसमें मैं एक ये सजेस्ट करूंगा कि वहां पे डिनर फर्स्ट डे कुछ बहुत स्पेशल नहीं होता है, तो आप लंच करके आइए बिल्कुल, और लंच अच्छा रहे, तो ताकि डिनर के टाइम को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये फर्स्ट डे अपना लगभग 3 घंटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, बट क्योंकि 60 लोग हैं तो सबका 5-5 मिनट करके भी काफी टाइम लग जाता है उसमें। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर एक ऑफिसर आते हैं, वो ब्रीफिंग करते हैं, वो बताते हैं कि आपको कैसे ऑनेस्ट रहना है। वो एग्जांपल्स देते हैं। अभी हमारे बैच में उन्होंने एग्जांपल दिया था कि इन द कॉन्फ्रेंस वी आस्क्ड टू अ पर्सन that how many friends you made. So what he said is that, sir, none. I have not made any friend here. So the board was shocked that he has not made any friends. He said, sir, I interacted to a lot of people, but I know when I will be back at home, they will be at somewhere, some other place. So what is the meaning of friendship? That is a blundering sir, did, I suppose, sir, right? perhaps, but officer was saying that we recommended him because he was honest. This is what officer said. I don't know whether it is a reality or not. Yeah. Or he So was they want trying you to, to persuade yes, us yes, so that, yes, yes. They want you to be honest and honest. yeah, they wanted us to be honest. So, and after that, verification done, briefing happened, and then we were allotted chest numbers. So chest numbers कुछ ऐसे हुए कि 1 to 10, सपोज 1 to 10 आर फ्रेशर्स, तो 1 to 10 का अलग ग्रुप बनेगा फ्रेशर्स का। फिर जो 1 टाइम रिपीटर है उनका नेक्स्ट बैच बनेगा फ्रॉम 10 to 20। 2 टाइम्स रिपीटर है तो 20 to 30। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो तो बाद में जो दिए तुमको लास्ट नंबर, बैच जो था, रिपीट्स वालों को बाद में नंबर दिया, राइट? एग्जैक्टली। तो लास्ट में जो बैच था 50 to 60, चेस्ट नंबर 60, उसके अराउंड 27 अटेम्प्ट्स थे। तो लास्ट बैच 50 to 60 आर हार्ड 27 अटेम्प्ट्स। ओके, हार्डकोर रिपीटर्स वर देयर फ्रॉम द लास्ट बैच। तो चेस्ट नंबर अलॉट हुआ, उसके बाद हमें रूम्स वगैरह अलॉट हो गए। आपको ब्लैंकेट्स वहाँ पे मिल जाता है पैसे देके, बट वो ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे नहीं थे। अब शायद अब तो जरूरत भी नहीं है ब्लैंकेट्स की, लेकिन मेरे बैच में काफी जरूरत पड़ी थी। तो अगर आपको पड़ती है तो थोड़ा बहुत ले जाना कुछ, वैसे अब शायद ना पड़े। ब्लैंकेट्स, बेडशीट नहीं मिलती है, पिलो नहीं मिलता है, पिलो कवर कुछ भी नहीं मिलता है आपको, सिर्फ एक बेड मिल जाएगा, दैट्स ऑल। तो दिस वाज द रिपोर्टिंग डे। आफ्टर दैट वी वेंट टू स्लीप। मॉर्निंग में बोला गया था कि 7:30 पे आप सभी को वेकअप कॉल मिलेगा। 7:30 लाइक आपको रिपोर्टिंग करनी है 7:30 पे बाहर। ब्रेकफास्ट वगैरह तब तक हो जाएगा, 6:30 पे ब्रेकफास्ट है। एंड दिस वाज द ब्लंडर दैट आई कमिटेड एक्चुअली इन माय लास्ट बैच। in my last batch when I was fresher for the SSB भोपाल। तो वहां पे आई थॉट कि आई एम अ फ्रेशर, पहले तो रिपीटर्स का इंटरव्यू होना चाहिए। जैसे ही मैंने साइक टेस्ट दिया, मैं बाहर निकला, तो मैंने कहा चलो तुम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, मैं जा रहा हूँ सोने। और at the spot the officer came and said, Shivam, you have got your interview within 5 minutes। तो ये वहां पे हुआ। यहाँ पे मैंने कहा कि अब तो फ्रेशर भी नहीं हो, तो रिपीटर हूँ यार, और 60 लोग हैं, फर्स्ट डे तो मेरा इंटरव्यू हो ही नहीं सकता है, और फर्स्ट डे भी होगा तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता है कभी। ठीक है। साइक टेस्ट जैसे ही हुआ, मैं कपड़े चेंज करने गया था, तो वहां पे ऑफिसर केम अगेन एंड सेड यू हैव गॉट योर इंटरव्यू विद इन 5 minutes। दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। this time again same thing happened। I was not mentally prepared। ना ही मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया था। तो
तो रही बात साइक की थोड़ी सी बात करते हैं। साइक में अगेन हम So, बैठे वहां पे। so Shivam, तो I think the takeaway from your experience is that no matter what the situation is, you should always be ready, right? Audience, if you're एग्जैक्टली listening, बी yeah, audience, 100% रेडी। yeah. So एंड opportunity will not knock your door again and again. Once it knocks, you're ready. You should be ready to point out. That's एग्जैक्टली if people listening this, I would like to add from Shivan's point of view. It's a live example in this particular field, right? So I would say that you can learn from his experience, right? And that was a blunder. I would say that, if we think, later on our interview will come, tomorrow will come, then that is a procrastination. It should not happen. But okay, we are learning from our mistakes. It's really a great thing. That's a good thing you put up this point in front of everybody, that it's not like that मेरा अभी नहीं आएगा, मेरा कल आएगा, मेरा परसों आएगा, मैं कल की तैयारी करूंगा. Not like that. Just you need to ready 24/7. अब मान लो आपका 10 दिन बाद FSB है, ठीक है, then you will नहीं 5 दिन पहले तैयारी कर लूंगा यार. Not, it doesn't work that way. Daily you have to grind, right, Shivam? Makes sense or not? राइट। Actually, the main purpose of this interview was this only. I really Okay. wanted to make people focus over this. This is a really big issue. We do not prepare for the interview. We spend time there by enjoying. Like people were playing other games. They were not preparing for the interview. So Okay. I think perhaps this is one of the most biggest blunder that we commit there. Okay. So after that, the psychology test started. It was a very like 12 pictures were shown. Some of them were had actions and some were neutral. All right. And one thing that I observed that in around 3 to 4 pictures, किसी ना किसी को डूबते हुए दिखाया गया था. In around Okay. 3 to 4 pictures. 3 से 4 Yeah. पिक्चर में लोग कुछ और डूबते हुए दिखाएगा. हाँ डूबते हुए दिखाया गया था और बोट्स वगैरह थी. 3 से 4 पिक्चर बोट्स है और डूबते हुए दिखाया गया. तो उसके बाद फर्स्ट पिक्चर में ही बल्कि दिखा दिया गया था, लाइक इट वाज लाइक बैक वाटर्स ऑफ केरला जैसा सीन था, मार्शेस. तो Okay. वहां पे एक बोट में एक लड़का ही वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड अ पर्सन वाज फायरिंग बुलेट ओवर हिम. तो फर्स्ट पिक्चर तो यही थी. फिर 3 to 4 में डूबते हुए ही दिखाया गया सीधे सीधे. एंड आफ्टर दैट 12th पिक्चर ब्लैंक स्लाइड. उसके बाद द थिंग दैट आई ऑब्जर्व इन द एसआरटी कि एसआरटी में भी कम से कम 3 से 4 सिचुएशंस ऐसी दी गई थी जिसमें डूबने का सिचुएशन है कि आपके एनिमी का सन डूब रहा है, या आपका दोस्त, आप बैंक के किनारे गए थे, वहां पे आपका दोस्त गलती से डूब गया है. तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि टैग पिक्चर्स को एसआरटी में लिंक किया जा रहा है. नहीं, लिंक किया जा रहा नहीं, ठीक लिंक है. तो होती है. एवरीथिंग इज लिंक्ड. एवरीथिंग इज लिंक्ड. आप टैट पिक्चर आप देखोगे ना, तो उसके ऊपर वर्ड्स बने होते हैं, सिचुएशन बनी होती है. उन सिचुएशन ऑफ वर्ड के हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ती हैं. देखो ना, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं ये बैड टैट मतलब टैट के बाद जो होते हैं. सो द थिंग इज दैट वो पिक्चर के ही अराउंड बनाते हैं जो भी आपको दें, क्योंकि आपका एक्शन आपने कुछ और लिखा है, आप उसमें रियलिटी एसआरटी में कुछ और लिख रहे हो, राइट? दैट इज द मेन एग्जैक्टली. थिंग. सो दैट मींस यू गेट टू नो वेरी इजीली व्हेन यू बिकम मोर एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर. सो उसमें डूबने वाली पिक्चरें ज्यादा दिखाई गई थी. 3 से 4 पिक्चर्स आराम से डूबने वाली थी. और बाकी पिक्चर्स कैसी थी? बाकी पिक्चर्स जो नेट पे रहता है एकदम सेम टू सेम. एक थोड़ा हाईली नेगेटिव पिक्चर था जिसमें दिखाया गया था कि एक डेड बॉडी पड़ी है. उसके उसके हेड के अराउंड में एक लड़का है, उसकी 20-24 के अराउंड में होगी, वो बैठ के रो रहा है और उनके पास में एक डॉक्टर आके शायद उन्हें कुछ कह रहे हैं. तो ये काफी नेगेटिव पिक्चर थी. इसके अलावा एक पिक्चर और थी जिसमें एक लड़की पीछे खड़ी है और एक लड़का, एक मतलब जैसा मैंने अज्यूम किया कि वो लड़की शायद उस लड़की की सिस्टर थी और वो लड़का अपने पेरेंट्स को कुछ समझा रहा है रिलेटेड टू हर सिस्टर, लाइक लेट हर टेक हायर एजुकेशन और लेट डू नॉट गेट हर मैरिड, समथिंग लाइक दिस. लाइक उसकी माँ उसको पुल कर रही है, राइट? और पीछे एक लड़की खड़ी है. एग्जैक्टली. ओके, देन वाज एग्जैक्टली. एंड जो आप पिक्चर भाई, एक डेड बॉडी का आपने बताया, एक फ्रंट में डेड बॉडी है, डॉक्टर साइड में बच्चा भी है साथ में? नहीं, बच्चा नहीं था. ओके. सो आई थिंक आपने मेरी वीडियोस देखी थी जिसमें हमने पीपीटी की प्रैक्टिस की थी. हैव यू गॉन थ्रू दोस वीडियोस? आई हैव गॉन थ्रू वेरियस वीडियोस. सम ऑफ द वीडियोस, राइट? एक्चुअली मैंने भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये फोटोज इंटरनेट पे हो, क्योंकि ऐसे सेम थीम के बहुत इंटरनेट पे फोटोज पड़े हुए हैं, बट ये फोटो सिमिलर कहीं से भी नहीं था. नहीं, सिमिलर नहीं, लिटिल बिट, थीम सेम, close to that. little bit was, yeah, it was close to that. Theme was same, we can say that. Same. Even when we do PPT practice now, 1-2 we'll do discuss what is a natural thing, what is the response, and later on we'll do brainstorming on that particular, and then we will come out with the best story on that particular story, picture.
right? So Yeah. some people have gone through that. Definitely, they can able to relate to what I'm saying here. So that is required because it's a perception, right? Everyone can perceive anything from their surrounding, what they living. Just for example, अभी आप किसी ऐसे surrounding में रह रहे हो झगड़े आसपास में ज्यादा होते हैं, तो आप उस तरीके की story for a moment बन के आएगी. You can't deny that thing. अगर आप उसको deny करो तो वो तो fake कर रहे हो. समझ में क्या बोल रहा हूँ सर? Right. So these things will happen automatically. Your environment, your society, will shape your personality, right? So you need to be careful in a lot of things. Okay, so these are the two negative pictures for drowning one. Or any other picture you remember? एक पिक्चर था जो एसएसबी भोपाल में भी आया था और यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली सेम डिटो पिक्चर वाज देयर. तो उसमें क्या था कि एक माउंटेन सा दिखाया गया थोड़ा दूरी पे और इट वाज हाईली हेजी पिक्चर. बट थोड़ा सा दिख जा रहा है कि शायद माउंटेन के जो फुट हिल्स है वहां पे कुछ लोग क्लाइंबिंग का कोशिश कर रहे हैं. तो एक ही पिक्चर था और एक पिक्चर और था जिसमें एक लड़के को रनिंग करते हुए दिखाया गया था. और एक पिक्चर था दैट्स ऑल. हाँ, एक और था, ये न्यूट्रल पिक्चर था. मैंने ये भी किया है कि 11th पिक्चर अक्सर न्यूट्रल आती है. ये मैंने वहां भी भोपाल में भी ऑब्जर्व किया था और यहाँ पे भी कि देयर वाज अ फोर्ट और दो लड़के उस फोर्ट की तरफ जा रहे हैं एक रास्ते से. दैट्स ऑल. अच्छा, तो आपने देखा था एक फोर्ट पे एक बंदा चढ़ रहा था पीछे से, अभी ऑब्जर्व है? दो लोग चढ़ रहे, दो या एक कोई चढ़ रहा था? कुछ लड़के कह रहे थे. हाँ, कुछ लड़के कह रहे थे कि हमने किसी को चढ़ते हुए देखा था. Yes, that picture is very common. To all the future officers who are listening this, interview. That उसमें एक पिक्चर है, दो लोग आप एक महल की तरफ जा रहे होंगे, तो दो लोग पीछे किसी महल के ऊपर चढ़ रहे होंगे, आप रास्ते में होंगे, तो कुछ लोग फिर दो लोगों को परसीव करते हैं, कुछ लोग उन चोर को देखते हैं, दो लोगों को मिस कर देते हैं. फोर्ट तो सबको दिखता है. तो वो स्टोरी आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके चले जाओ. वुड रिकमेंड दैट बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्लॉग में आएगा नहीं. तो वो पिक्चर काफी फेमस पिक्चर एक्चुअली, जो आपने देखी है, जिसमें दो एक्चुअली आपने शायद दो लोग मिस कर दिए होंगे ऊपर चढ़ रहे थे. नहीं, एक्चुअली मैंने 30 सेकंड्स के लिए मैंने देखने की कोशिश की थी बट स्टिल आई मिस्ड दैट. Okay, इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी व्हेन पीपल सेड. Yeah, it's a natural thing. It's a perception. That's what I was saying. Right. So It's a यही तो perception. टेस्ट यही तो टेस्ट लेते हैं लोग. So we can't say anything, comment on that. Okay. So Yeah. that was a picture, very common picture. Right? Yeah, please. Sure. Yeah. Those who were able to perceive, they got the action in the picture, and those who didn't, they saw that a neutral picture. Okay. That's how the perception changed. Yeah, you said the same thing about the picture. It means it is really common. Yes. If you practice, yeah, please. Well, yeah, if you practice a lot of TAT pictures, you can really do well. Because I think the picture may change a little bit, but the themes are common. The little small things can change, but the themes are really common. Like we have observed a lot of pictures on the internet where someone are shown drowning. If you practice around 30-40 pictures, then even then you can do good in the TAT. Right. Actually, no one knows that what need to be done, right? That is one of the thing with the SSBs, maybe it's of Army, Navy, Air Force, and Coast Guard, right? So what were the next stage after your TAT? TAT के बाद हमें VAT दिया गया. We were given booklets and we were shown words. हमें ऑफिसर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए और बोला गया कि अभी वहाँ पे वर्ड्स दिखाए जाएंगे. 15 सेकंड्स के लिए एक वर्ड रहेगा. 15 तो अब ऐसा मैंने 15 सेकंड्स. ओके 15 सेकंड्स. या तो अब ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया और कुछ बाकियों ने भी, लड़कों ने भी कहा कि स्टार्टिंग के कुछ 3-4 वर्ड्स थे वो कुछ ज्यादा ही जल्दी गए थे. तो यहाँ पे अराउंड वर्ड्स जो भी थे वैट में, ये सारे के सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. इफ यू कैन रियली प्रैक्टिस एट होम. ऑलराइट. The keyword that I noticed here was that the officer said, gentlemen, we are not here to see your negativity. We only want to see your positivity. How much positivity is filled in you. So जो वर्ड्स दिए गए थे like die and disobey, अगर आप इन वर्ड्स को भी पॉजिटिव बना दे रहे हो, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से पूछा था वहाँ पे जो बाकी कैंडिडेट्स थे, मैंने पूछा आपने इन सब वर्ड्स का क्या बनाया है. तो जो नेगेटिव वर्ड्स थे उन्होंने उसका न्यूट्रल बना दिया था, बट दे फेल टू मेक इट पॉजिटिव. तो वैट में ये मुझसे भी कुछ गलतियां हुई और ये बाकियों से भी मैंने यही देखा कि ये तो है कि जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी एकदम भरी होती है.
तो Okay. जो भी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं वो उसका न्यूट्रल नहीं, वो उसको हैंडल करते हैं प्रॉपर तरीके से, और They उसको can't हैंडल करके उसको पॉजिटिव, या दे ignore नहीं कन्वर्ट इट करते हैं इनटू द बल्कि। पॉजिटिव सेंटेंस। Okay. या Okay. So तो after that, what और happened? बैठ के बाद? वैट के बाद एसआरटी हुआ। Mhm. एसआरटी में मैंने बताया था कि सिचुएशंस वेर सिमिलर टू दैट ऑफ द टैट। फिर एसआरटी के बाद हमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट दिया। सेल्फ How many डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बाद एक और अटेंड कितनी की थी आपने सर? मैंने 45 की थी। अच्छा, और बैट बैट कितने अटेंड कर लिए थे? 57 एवरेज 57 था। सिर्फ एक या दो लड़के थे जिन्होंने 60 आउट ऑफ 60 किए थे, बाकी सब ने 57 के रहा। Okay, now after that, what we have in this SRT, after that, what is it? SD, right? Self description. सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। So what were all questions? What all questions they asked? Questions में अगेन द क्या क्या सेम पूछ रहे थे? क्वेश्चन व्हिच आर, या What your parents think what your about? parents Mhm. what your parents think about you, your Mhm. teachers or your employer, Mhm. colleague if you are Okay. working. Okay, Mhm. and what yeah, your colleague, and what do you think about yourself, what do you want to be. These were the things that were there. Okay. So what is the next stage later? Yeah, just after the psychology test, I went to the dormitory where the officers came and they told me that you have your interview within 5 minutes. So I rushed and I couldn't even prepare myself for the interview. I couldn't. Okay. So like मैंने आपका साइकोलॉजी के पास सेम डे पे आपका इंटरव्यू ले लिया उन्होंने? मैं डॉर्मेट्री में गया था, बस साइकोलॉजी दिया। आई वेंट टू द रूम टू चेंज द क्लॉथ्स। मैं बस वो कर ही रहा हूँ कि वहाँ पे ऑफिसर केम एंड विद इन 5 minutes you have only 5 minutes, the officer is waiting there for you. Okay. So you know, if you are there then you have to be prepared. What was your chest number? It can be my chest number was 16. 16. Okay. So chest number 16. Exactly. Be ready. Right. Yeah, chest number 16. Be ready. There was like, what is the logic? Last time also had Even the in same my thing happened with you, right? yeah, there my chest number was 18. Okay. So they particularly do not follow any pattern, like only from the repeaters batch the first person will be called. They do not follow any pattern. The randomly candidates will be called for the interview, right? So interview, I would like to suggest some things for the interview. First of all, a lot of people do ask me that what were the questions asked in the interview. All right. So some say that the questions, whether the questions were based on the CIQ. So if you know, Deepak, there are, I think there are 3 CIQs for those who are not working. So you can easily remember all the questions from those CIQs. You can get all it on the internet. तो CIQ इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपने CIQ पढ़ा है या आपने नोट किया है तो आपको लगेगा कि यार ये तो सेम लाइन बोल रहे हैं सर, आप उसको सीरीज में भी आंसर कर दोगे। बस आप घर से एक बार उन दोनों उन सब CIQs को देख कर जाओ। बट द थिंग दैट मैटर्स इज द क्रॉस क्वेश्चन। तो ये सबका पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो यू कैन नॉट से कि तुमको क्या क्वेश्चन पूछा। आप अपना CIQ प्रिपेयर करिए, फिर उससे फ्लो चार्ट बनाइए क्रॉस क्वेश्चंस का। तो मेरा ये काफी सही किया था। अब दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे कोस्ट गार्ड में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जनरल नॉलेज में 2 चीजों पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा था। आई मस्ट से दैट काफी ज्यादा। पहला जियो पॉलिटिक्स पे और दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी पे। जियो पॉलिटिक्स में या मैं जितने कैंडिडेट्स थे वहां पे मैंने पूछा, हम आपस में पूछते रहते थे तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा। तो दे ऑल सेड CPEC, इंडो रशिया यूक्रेन वॉर, अफगानिस्तान इन्वेजन, साउथ चाइना सी पॉलिसी, एंड द अदर क्वेश्चंस लाइक इंडिया USA रिलेशंस। तो इंडिया का क्या फ्यूचर होना चाहिए, आपका ओपिनियन पूछेंगे इसमें, व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड दे विल रियली डिबेट विद यू ओवर दैट तुमको ऐसा लगता है, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हारा क्या है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, आई थिंक तुम गलत हो। तो दे विल ट्राई टू एम्फसाइज देयर सेल्फ। तो यू नो ये काफी ज्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट करता है वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स। इतना मुझे SSB भोपाल वगैरह में भी इतना मतलब देयर वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो 1 लाइन क्वेश्चन की जो जनरल नॉलेज है, बताओ कि ये ओशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। पर यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स था ये ओपिनियन बेस्ड था। Tell me what all you know about it, and after that they will debate with you over that. Can you tell some like of the questions? से What all kind of questions they ask?
Everything, just tell everything. When Uh, you entered in the room, you greeted him, what question he asked, and just your experience. Yeah. First of all, when I entered the room, he said, Shivam Singh, please sit down. Okay. So Shivam Singh, I'm trying to mimic him. So he said, Shivam Singh, I was going through your PIQ and I have noticed certain facts. So I will consider it as a chit chat only between us. Mhm. So I will be interested in three things: about your academics, about your family background, and about your personal life. All right. So this was his opening speech for that. And after that, the interview started. So पहले तो CIQ आया about your family. I mean for the academics हुआ. उसके बाद favorite subject, favorite teachers, not so favorite subject, not so favorite teachers, your pocket money, etc. ये CIQ था. इसके बाद फिर वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस हुए. इसके बाद यहाँ से फिर इंटरव्यू पूरा फ्लो स्टार्ट हो जाता है. तो मेरा उसके बाद जियो पॉलिटिक्स में जो उन्होंने मुझसे सॉरी मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड था. तो फिजिक्स बैकग्राउंड तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि शिवम उनका आई थिंक उनके ईयरबड्स पड़े हुए थे टेबल पे. तो ही टुक द ईयरबड्स लाइक दिस एंड टोल्ड मी दैट शिवम इफ आई थ्रो इट लाइक दिस एंड आफ्टर दैट इट विल फॉल हियर. Tell me all the equations that will take part here, like kinetic energy, potential energy, what all will happen. Yeah, but all will I explained it to him. And after that, he asked me, Shivam, do you know about pH? मैंने कहा, yes, sir, I know about it. Negative logarithm of S plus T minus. No, how it is written. So I told him that, sir, it's a small p and capital H. Okay, why it is written that like that? So these were the questions from your academic background. What all he And asked after you, that, especially for the physics, from the people from the physics background. Yeah, फिजिक्स देखो, फिजिक्स में तो जब उन्होंने ये पूछा मेरे से कि ये हमने ऐसे थ्रो के नीचे है, तो आई एक्सप्लेन देम कि काइनेटिक एनर्जी सर इनिशियली मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी एंड मैक्सिमम पे ऐसा उल्टा हो जाएगा इसका. तो ही आस्क्ड मी कि फिर व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. आई सेड सर एट द मिड पॉइंट. तो ही सेड कि व्हाट इज द ग्राफ. मैंने कहा सर इट्स अ पैराबोला. तो कह रहे पैराबोला, व्हाट टाइप ऑफ पैराबोला इट इज. मैंने कहा सर फॉर काइनेटिक एनर्जी इट इज अपवर्ड पैराबोला एंड फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इट इज डाउनवर्ड पैराबोला. कह रहे ओके, इफ इट इज पैराबोला देन व्हाई आर द मिड पॉइंट. तो लाइक वो आपको तब तक आपसे पूछते रहेंगे उसमें जब तक आप कहीं ना कहीं फंस हो ना उस चीज में. आप जहाँ पे फंस जाएंगे, ओके यू कैन सर्च इट एट होम आल्सो. तो दैट्स ऑल. दिस वाज द फिजिक्स का मेरा एक ही क्वेश्चन पूछा, उसमें ही आगे वो लेकर गए क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. फिर वो पीएच वाला क्वेश्चन था. उसके बाद अगेन फैमिली बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ कि आपकी फैमिली क्या होती है. तो आई एम लिविंग इन लखनऊ. सो दिस वाज हिज मेजर कंसर्न कि आपकी फैमिली गुजरात रहती है, आपके ग्रैंडफादर अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, व्हाई यू आर लिविंग इन लखनऊ. तो लाइक ये तो नहीं कह सकते कि सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे. मैंने बोला बट उसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू नहीं दिया उन्होंने. ही सेड कि यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम आल्सो. तो आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर के पास भी रहना चाहता हूँ, तो लेकिन वहाँ पे प्रिपरेशन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर इंटरनेट एंड अदर थिंग्स. आई कैन नॉट अटेंड द मॉक टेस्ट एक्सेट्रा. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दैट. यू विल बी रियली कंसर्न्ड विद दैट. तो इसके बाद फिर सर का क्वेश्चन था मेरे से कोस्ट गार्ड को लेके आया सबसे पहले. तो कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड. तो आई गेव हिम द रीजन. So while giving the reason, I mentioned about EZ and CZ. So he asked me what is contiguous zone, what is its length, how it was formed, and EZ के ऊपर भी क्वेश्चन आया. I said ना कि जब तक वो फंसा रहा है सर, जब तक आप क्वेश्चन में रुक ना जाओ, तब तक he will still asking questions from that only. So I told him about EZ and contiguous zone. Then he asked me, tell me the situation, tell me about the situation. When what will happen if there is only 20 kilometers of distance between two countries, then how will the EEZ will be decided. तो ये मैंने पढ़ा तो था पर उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था. तो economic zone, right? EZ is economic zone. Yeah. Exclusive economic zone. Okay, exclusive. Okay. Yeah, exclusive economic zone. तो he asked me that जैसे अभी अपना इंडिया का और श्रीलंका का डिस्प्यूट चल रहा है EEZ पे. तो इसके ऊपर भी उनका, क्योंकि हमारे फिशरमैन अक्सर कैच हो, श्रीलंकन नेवी उनको कैच करती है, तो काफी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है. नहीं उनका तो रहता ही, कभी हमारे कर लेंगे मछुआरों को भी वो कर लेंगे.
एग्जैक्टली अब ये डिस्प्यूट भी इसीलिए रहता है क्योंकि ईजेड कोई वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अभी बना डिमार्केट शायद नहीं हुआ है पर। तो उनका मेन क्वेश्चन ये था कि ठीक है हमें 200 नॉटिकल माइल्स का ईजेड मिल जाता है, ठीक है, पर अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में केवल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ओनली 20 नॉटिकल माइल्स, तो फिर ईजेड कैसे डिसाइड होगा? तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट। फिर उसके बाद इसका हुआ तो उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट द डीजीओ, टेल मी हु इज द डीजी ऑफ कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड। So I told him about the Kochi and DG sir, and you told me na कि use the word PTM and TM, President Takshak Medal. I use those words also. And after that, he asked me about the ranks. You know, I remember the ranks very well. But what happened there was due to the pressure, I was not able to tell him the lower ranks. I only told him about the officer's rank. जैसे ही मैं इंटरव्यू देके बाहर निकला एट द स्पॉट मुझे फिर से याद आ गया, बट वहां पे आई वाज नॉट एबल टू टेल हिम द रैंक्स। और बाकी कुछ लड़कों से उन्होंने यस प्लीज बाकी कुछ लड़कों से उन्होंने रैंक्स के अलावा शिप्स वगैरह के बारे में भी पूछा था कि व्हाट आर द वेरियस शिप्स दैट। राइट, अगर तुमने मेरे वीडियोस देखे जो मैंने डाल रखे उसमें मैंने ऑलरेडी टेक्निकल और मतलब एक बता रखा है ना, एक वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी बताया जो भी शिप्स हैं जो आपके वेबसाइट पे जाओगे ना, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पीपल स्किप दैट, राइट, मोस्ट ऑफ द इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी मैंने आपको बताया वो पूछे क्वेश्चन आपसे, राइट, जो मैंने डाले उस वीडियो में। अगर मैं बताऊंगा अगर मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 में से 10-12 तो पूछे होंगे आपसे, ऐसा नहीं पूछे? बिल्कुल पूछे थे। हाँ, तो अगर मेरे से नहीं पूछे थे तो बाकी कैंडिडेट से पूछे थे। हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं आया होगा, शिप आया होगा, नहीं तो एयर स्क्वाड्रन आया होगा, इनका अभी जो हेलीकॉप्टर है उनका ड्रोनियर है, शिप्स हैं कौन कौन से क्लास के हैं, क्या क्या है, ब्रिगेड्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी होंगी। और पोर्ट्स के बारे में पूछा था तुमसे कुछ? नहीं, पोर्ट्स का नहीं पूछा था। और कोई क्वेश्चंस आपको, और क्वेश्चन आपको रिमेंबर हो जो आपको, कितनी देर चला इंटरव्यू से? मेरा इंटरव्यू अराउंड 1.5 आवर चला। कितना कितना 1.5 आवर? इतना लंबा? 1.5 आवर, हाँ ये मेरा चल गया था थोड़ा। फैमिली में मेरा काफी स्टैंड हुआ था, फैमिली रिलेटेड में आपको कुछ लेके चीज उसने तो उनका कुछ पता चला वो जो भी है लाइक राइट और कोई चीज बताना चाहते हो इंटरव्यू रिलेटेड ऑडियंस को? या मैं बताना चाहूंगा कि जियो पॉलिटिक्स पे काफी फोकस करें, क्योंकि वहां पे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि कब इन्वेजन हुआ। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि अफगानिस्तान इन्वेजन के बारे में आप बताओ, तो मैंने बोला कि सर 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, तो उसके बाद उन्होंने वहां पे मुजाहिदीन का फॉर्मेशन किया। तो कह रहे वेट दे फॉर्म मुजाहिदीन देयर। मैंने कहा यस सर। देन व्हाई आर, तो सर ने कहा देन व्हाई आर यू कॉलिंग इट इन्वेजन, इट वाज नॉट एन इन्वेजन। तो लाइक आप कुछ जो जियो पॉलिटिक्स के इवेंट्स हैं उसको काफी डीप में पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है कि बस सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, फैक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं वहां पे। दे वांट योर ओपिनियन, they want to see whether you have indeed the depth of the knowledge or not. They are checking your depth, कि आप सिर्फ इंटरव्यू दिखाने के लिए पढ़ के आए हो कि क्या क्या कैसे हुआ था, या फिर आपको सच में उसके बारे में इंटरेस्ट है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अब यहाँ से फिर से अगेन द ब्लंडर दैट आई टोल्ड यू कि मेरा इंटरव्यू में आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आफ्टर दैट सर का जो लास्ट के 15 to 20 मिनट्स थे, जो लास्ट के, मेरा ब्लैकआउट हो गया वहां पे। लाइक बट आई वाज नॉट एबल टू सी हिम, आई वाज नॉट एबल टू हियर हिम। मैं उनको देख ही नहीं पा रहा था। आई वाज ट्राइंग टू फोकस माय सेल्फ, लाइक आई वाज डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट आई वाज नॉट एबल टू फोकस ओवर हिम। तो एक बार को तो लगा भी कि बोल दूं कि सर आई एम फेंटिंग, आई कैन नॉट कंटिन्यू द इंटरव्यू, बट स्टिल मैंने कहा कि छोड़ो, शायद 10 या 15 मिनट की और बात है। 1.5 घंटा चलाना तो था, ऐसे से 1.5 घंटा है। या उसके बाद उन्हें भी कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि एग्जॉस्ट हो चुका है, अब इसके अंदर बहुत एनर्जी नहीं बची है। तो वहां पे ही वांटेड टू चेक माय पेशेंस। तो व्हाट ही सेड कि शिवम, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ग्रैंडफादर बट यू आर इन लखनऊ, ओके, तो टेल मी वन मोर थिंग दैट in case you are recommended you will be going for the academy. मैंने कहा yes sir। कह रहे okay then it means you are going to leave your grandfather to die at home। तो अब लाइक काफी उनको पता लग गया था कि एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब इसका जो रियलिटी है, जो भी है, ये गुस्सा करता है कि नहीं करता है, क्या है वो, शायद यहाँ पे बाहर आए। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा कि मेंटली प्रिपेयर रहो इंटरव्यू के लिए। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड।
कि हाँ मेरा भी इंटरव्यू होने वाला है, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक हो जाओ और पानी पी लो। ठीक है, पानी पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मेरे लिप्स वगैरह सब ड्राई हो चुके थे। मैं बोलने का 1 घंटा तो चल गया था, ठीक था, उस 1 घंटे के बाद आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये मैंने कहा कि नो सर, माई मदर विल टेक केयर ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो कहते ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सी पैक, व्हाट इज इंडिया ऑब्जेक्शन ओवर दैट। तो मैंने उसके ऊपर ब्रीफिंग किया थोड़ा सा, और उस टाइम ऐसा था कि मुझे बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने से, और वो मेरे सामने बैठे थे, अराउंड 2 मीटर्स का डिस्टेंस रहा होगा। उनके पीछे एक विंडो खुली थी, उससे सनलाइट सीधा मेरे फेस पे आ रही थी। वैसे तो भी मैं बोलूँ। ये और भी ज्यादा ये और भी ज्यादा इरिटेटिंग हो रहा था वहां पे। ठीक है, तो क्योंकि अब आप 3 घंटे तक आप साइकोलॉजी टेस्ट देकर आए हो, उसके बाद आप खाली बैठे ही थे कि तुरंत आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब 1 घंटा हो गया लगातार ब्रीफिंग, मतलब ओपिनियन एंड क्रॉस क्वेश्चंस करते करते, तो आपका एनर्जी एकदम लो लेवल पे चला चुका था फिर वहां पे। फिर ये भी हो गया, सीपेक हुआ, उसके बाद वो मेरे पे आए चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। कह रहे व्हाट इज योर ओपिनियन ओवर दैट, व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन, मतलब व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी दैट चाइना इज फॉलोइंग। अब मुझे इसके आगे से याद ही नहीं कि लास्ट के 10 मिनट्स कैसे क्या हुआ था वहां पे। मैं बस वहां पे somehow I tried to sit there and let the interview get finished. So I really want to suggest people that please uh, be physically fit or and as well as mentally fit for the interview. Otherwise इंटरव्यू अगर मेरी तरीके से हुआ कि फर्स्ट डे पढ़ा एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप बाकी टेस्ट में कितना ही प्रिपेयर कर लो, इंटरव्यू तो नहीं सही होगा। Okay, so the fact is that one need to keep themselves, physically fit. That's a first requirement, because if you're physically fit, definitely your फर्स्ट, mind really going to work well, and if your या mind going to well work, and everything work well. If you do, a little bit like I used to tell people right from beginning, do physical exercise, at least run 5 kilometers too. If anybody who's listening this, make yourself 5 kilometers running in a day, right? After 5 kilometers running, make sure that you do a little bit meditation for 20-25 minutes. And the next thing, like avoid any kind of masturbation. These are the things which one should preserve. No fat kind of thing which is going on out. There's a trend. Definitely that energy is going to be very useful, right? So these are the 3 things you do in your life, and you can see the changes within 1-2 months. It will take time. It will not a one-day thing. It will take time. 3, sometimes 4, राइट, sometimes 6 months, right? Because you're physically fit, you're working on yourself, and then definitely your energy will flow so strong that you will be strong from here also. And mindset is also plays a very vital role. If you're physically fit, होगे तो आपका mind भी अच्छा चलेगा. So these are the things you should go for and learn some good things. And keep your surrounding good or nice or something. Surround yourself with the lions, or I would say the people same mission as you are on, or the positive people. So that's what shapes the one's personality. And that's all from my end. I would say that because you put out the point physical fitness. So these are राइट, यू आर first. एग्जैक्टली राइट, बिकॉज Yeah, या please bolo, bolo. because Deepak, even if you are a very good candidate and you are not able to show that there, then what is the point of being a very good candidate, right? You Right. are not able to show yourself that what you are really is, what is your knowledge. I had good knowledge about CPEC and etc. and other things, but I was not Okay. able to show there because I was not physically and mentally prepared for that. So these topics You are the know, current topics. yeah, current topics. Okay, so you're preparing these topics also as of now for your exam, right? Yeah, I was preparing. Okay. So this So was how the interview went. any Yeah, question you remember regarding interview? like कुछ भी याद हो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, कुछ स्किप हो रहा, कुछ मिस हो रहा हो आपसे? ये ऐसे ही था ना, 1.5 घंटे बाद मतलब अपनी CIQ. फैमिली के ऊपर ज्यादा पूछा उन्होंने मेनली. Yeah, family, my brother, and there is a person in my family who is ill. So Okay. uska he told me that what is the medicine that he is taking and how the medicines work in his body. What are the various things that the medicines release in her body. So I was not from the biological background, but still मैं जब घर में बैठा रहता था तो मैं सर्च किया करता था कि ये मेडिसिन कैसे काम करता है, क्या होता है, क्यों होता है। तो वो उसका इस पे काफी देर तक चला था, बल्कि आई वुड से दैट 20 मिनट्स तो इस पे ही गया था कि मेडिसिन वगैरह का।
मतलब ये है कि आप जो भी बोलोगे उस पे डीप जाएंगे वो, आपसे क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे कि आप सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। या These things are really very, very important. exactly. And one thing he again one thing he asked me that what is the difference between Lucknow and Delhi? तो मॉन्यूमेंट्स के क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं आपके साथ विजिट करता हूँ लखनऊ, तो व्हाट आर द वेरियस प्लेसेस यू विल टेक मी टू। Okay. ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, परहैप्स सब इंटरव्यू में यही कहते हैं कि ये तो प्रिपेयर कर लेना अपने प्लेस के बारे में। Okay. So, Shiva, I think you're done with the interview thing, right? Okay, psychology, but your या interview, your experience. Now, what we have next? Next day it was your GT, the same day, next day only, right? जीटीओ, या जीटीओ वाज देयर। So, what is GTO now? Like what happening in GTO nowadays in postgrad? Because many people are, doubt. Like, okay, what is some people say ground tasks are there, some saying it is not there. And maybe it is there. Then how many are there? Whether conducting, the same kind of ribbon class that office will wear and give all those things, same kind of thing, or it's a little bit different, or some obstacles are the new, or like similar. Like if you see in Air Force board, their tire is there, but in Army maybe it is not there. Right? At height is more. So what all obstacles were there? If it is there, just tell us something about this GTO task. How they ask you श्योर, to wear the dress, or maybe you can wear whatever you want, like all those things. Please. अंडरस्टूड। सो जीटीओ को बेसिकली इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इंडोर जीटीओ and outdoor GTO. The indoor GTO will be conducted on the second day, and the outdoor GTO will be conducted on the third day. So indoor GTO is as same as of the SSB, like same GD, lecturate, GPE, and finally I think there are only these three things are there: GDO, GPE, lecturate. Okay, so I have noted down the topics which were given in the GD. So first of all, the first GD was for the impact of Russia-Ukraine war on India, and the leads were given as uh, whether the China will increase its aggressiveness in the Arunachal Pradesh. It was the first lead. The second lead was given as whether the Indian economy will suffer, and third I do not remember. And then the second GD, which was given as because I think it was the Women's Day, World Women Day, perhaps on the 9th or 8th of the March. So the question, the GD was crime related to women, why it is increasing. The special fact about this GD was that there was no lead. He gave a lot of options like the mentality of Indian women, Indian men, society, less stringent laws, and he told other some 3 to 4 things. And after that he said that or any other thing that you people believe that it is a reason behind the crime related women. Okay. So these were the two GDs which were given. 20 minutes for each group discussion. And GTO सर बीच बीच में इंटरप्ट भी कर रहे थे कि प्लीज स्पीक वन बाय वन। वो ऐसा मैंने भोपाल एसएसबी में नहीं देखा था कि उन्होंने छोड़ दिया था कि आप बस जैसे मर्जी आप करो, वो बस नोटिस कर रहे थे बैठ के वहां से। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जीटीओ सर ज्यादा स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो इंडिविजुअल्स पे। तो ही वॉज इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज स्पीक वन बाय वन, स्पीक बाय वन बाय वन। तो जीडीस हो गए, उसके बाद फिर अपना जीपीई हुआ, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ठीक था, नॉर्मल था। उसके बाद अपना लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में कुछ टॉपिक्स थे वही जो कॉमन, वेरी कॉमन टॉपिक्स। तो कार्ड्स पे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने जब जीपी दिया था तो किसी बंदे ने बात, जैसे किसी और को आपने सिलेक्ट किया हुआ, तो ऐसा कोई था ऑफिसर ने आपसे पूछा था बाद में कि कोई और इससे बेटर सॉल्यूशन देना चाहता है, समथिंग व्हाट हैपेंड? बेटर नहीं, हाँ उन्होंने पूछा था कि वेदर एनीवन वांट टू ऐड सम पॉइंट। तो कई लोगों ने किया था, मैंने भी थोड़ा ऐड करने की कोशिश की थी। अच्छा, यू गाइस ट्राई टू ऐड, राइट? या तो आपकी ग्रुप से कोई रिकमेंड हुआ था उस टाइम? हमारे बैच से चेस्ट नंबर 20 रिकमेंड हुआ था। नहीं, आपके बैच से नहीं, आपका जो ग्रुप था उसमें। अच्छा, से आप हाँ हमारे ग्रुप से चेस्ट नंबर 20, या चेस्ट नंबर 20 वाज रिकमेंडेड। तो जीपी का कंक्लूजन उसने दिया था? नहीं, चेस्ट नंबर 12 ने दिया था। चेस्ट नंबर 12 ने दिया। ओके, सो उसने सही दिया था जो भी दिया था, कंसेंट जो भी स्टोरी बताई थी जीपी ग्रुप एक्सरसाइज की।
मुझे जीपी में तो मुझे उसका बहुत याद नहीं था, क्योंकि जीपी में द चेयर्स वर नॉट इन द सेमी सर्कल फॉर्मेशन। बट मुझे जीडी में याद है कि उसका ग्रुप डिस्कशन में, बट दैट थिंग दैट आई ऑब्जर्व वाज दैट ही वाज calmly sitting over the chair, like he was not moving to emphasize his point, and he was remembering the points from others. Like he will like whatever I have said, whether 5 minutes have elapsed in the group discussion, he will come back to your point even after 5 minutes. Okay, great. He will keep the points in his mind in the group discussion. So this was something which I liked about him. That's a great And thing. after that, lecturate was good. So lecturate में I think uniform civil court, cyber crime, cricket versus other sports, female foeticide, India-Russia relations, media trials. ये very common. These are very common topics, right? Okay. तो ये सब थे। और लेक्चरेट से पहले हमें बोला गया था कि आप सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बताना है, what you are right now, what you are doing, your academic background, and why do you want to join Indian Coast Guard. Okay, ये पूछा आपसे लास्ट में, right? Yeah. Okay. सबसे पूछा था ये। Great. और लेक्चरेट में आई वुड लाइक टू सजेस्ट, कई बार क्या होता है कि जब हमें कार्ड मिलता है, तो उस कार्ड में जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी डिफिकल्ट से हो जाते हैं। तो व्हाट वी डू इज दैट हम 3 मिनट ये डिसाइड करने में ही लगा देते हैं कि हम कौन सा टॉपिक बोले इसमें से। ये होता है काफी लोगों के साथ। या तो आपको बेसिकली उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पहले डिसाइड कर लो कि ये सब बोलना है, तो प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज कर लो। और काफी कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर किया जा सकता है शायद। ओके, सो इसके बाद अपना नेक्स्ट है आउटडोर जीटीओस होता है। तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द वंस दैट आर इन द आर्मी एसएसबीज। अच्छा, जीटीओ हुआ था इस बार मतलब? या आउटडोर। ओके, आउटडोर जीटीओ। जीटीओ के बारे में बताओ। जीटीओ पहली बार हो रहा है कोस्ट गार्ड में, सो दैट इज द थिंग। राइट। मच फोकस। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब जीटीओ होगा तो हमें सुबह 8 बजे हमें बोला गया था आपको आके रूम नंबर फर्स्ट फ्लोर पे रूम में बैठ जाना है, 103 था शायद। तो हम 60 के 60, चाहे सिर्फ 10 का ही क्यों ना हो, सबके सब आके 103 में ही बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सब विंडोज से जाके उनके टास्क को देखें, तो आप सबको 103 में आके बैठ जाना है। उसके बाद क्या है? पहले 103 हॉल है, रूम है। अच्छा, वही ग्राउंड में ही फर्स्ट हॉल? 101 नहीं, ग्राउंड जो बिल्डिंग है, मेन कैंपस है जो रिक्रूटमेंट वाला, उसके जस्ट बाहर में ही ग्राउंड है उसका। बाकी एसएसबीस में होता है ना कि बाहर अलग अलग जगह पे होते हैं। नहीं, आपको जहाँ पे रहने 103 बोला था, वो तो आपको कमरे में बोला होगा ना रहने के लिए, मतलब वो ग्राउंड में था रूम या फिर बाहर था, कैसे क्या था? आपकी बिल्डिंग में था, फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम 103। तो उसी में बैठने को था। और हमारा जो डॉर्मेट्री है वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे है, तो हमें अपने डॉर्मेट्रीज को छोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे आके 103 रूम के अंदर बैठ जाना है। तो उसके बाद हमें 10 स्टूडेंट्स वर कॉल्ड ग्रुप अल्फा 10 स्टूडेंट, तो वो सब भी गए नीचे, उनका हुआ, फिर हमें बुलाया गया। तो वहाँ पे पहले तो जीटीओ सर ने ब्रीफिंग किया कि दीज आर द ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स में वही है, टार्जन स्विंग, टार्जन जंप, बर्मा ब्रिज एंड कमांडो वॉक, डबल बैरल जंप एंड डबल डिच। अच्छा, डबल बैरल उसके ऊपर आर्मी में जैसे होता है, या उसके ऊपर से जंप करना है। या तो शायद हमारे ग्रुप में अपने ग्रुप में कुछ लड़के बता रहे थे ना कि इसमें कुछ नया ऑब्स्टिकल है, जिसमें कुछ क्या? Sure, we can't hear you. Just mute. हाँ, बोलो क्या बता? Am I audible right now? Now you're audible, please. Yeah. Now again you're not audible. But now you're audible. Yeah. Now say. Am I audible right now? Now you're audible. Yeah. तो ये हुआ कि असल में वो ग्रुप में जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि शायद नया ऑब्स्टेकल ऐड किया गया है। उस ऑब्स्टेकल में क्या है कि आपको एक तारे बिछाई गई हैं, तो उनके ऊपर सबको जंप करना है। वो असल में वो कुछ नहीं, वो डबल बैरल जंप है। तो आई थिंक वो सभी आर्मी वाले एसएसबी में गए नहीं होंगे, तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने एयरफोर्स के एसएसबी में वो शायद नहीं होता है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये नया समथिंग, इट इज न्यू। नंगे तार तो नहीं होंगे ना, बैरल ही होंगे। नहीं, तारे तो हैं, तारे तो अच्छी हैं। अच्छा, तारे हैं। थोड़ा उसमें
नहीं, गिरा तो कोई नहीं था, थोड़ा ये किया गया है कि जो कांटे हैं जो उसके अंदर उसको थोड़ा बेंड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ तारे तो थी, और कुछ कांटे भी थे उसमें जो इंजर्ड कर सकते हैं अच्छा खासा। अच्छा, तो ये सारे ऑब्स्टिकल थे। तो कितने या फिर इंडिविजुअल एग्जैक्टली ऑब्स्टिकल्स में, सेम। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कितने थे? 10। अच्छा, पूरे 10 थे। क्या क्या था उसमें, कुछ याद हो आपको? अच्छा, हाँ तुमने यही ये, टार्जन। अच्छा ये सब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है ना? या दीज वर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। हाँ, जस्ट जस्ट कैन यू रिपीट दैट? द टाइगर स्विंग हो गया। ओके। मतलब पहले एक उसके सीक्वेंस से बाद बताओ, सीक्वेंस से बताओ। मुझे इसके स्कोर तो याद नहीं है कि इनके हम्म। स्कोर्स क्या क्या थे वहाँ पे, बट ये सेम सीक्वेंसिंग है क्या जो थी? एसएसबी में एक सीक्वेंस होगी ना, वो तो बोला कहीं से भी आप शुरू करो, उन्होंने कहाँ से आपको शुरू करने की? जैसे आप एक जंप करके जाते फिर एक नहीं, उससे आप कूदते कहीं थे। से भी कर सकते हो। आप वो इन्होंने ये कहा था कि जब मैं नेक्स्ट कहूंगा तो आपको आके किसी भी ऑब्स्टेकल के सामने खड़े हो जाना है हम्म, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो। ये हम्म, किसी भी सीक्वेंस में अरेंज नहीं की, ऑब्स्टेकल्स किसी भी सीक्वेंस में नहीं थे। हम्म, तो अगर वन एक यहाँ पे है तो 10 उसके ठीक अपोजिट में है, 8 उसके हम्म, जस्ट बगल में है, तो 6 वहां पे अपोजिट साइड में है। तो ये है कि आप जब आपको नेक्स्ट कहा जाएगा, आपको आके अपने किसी भी ऑब्स्टेकल के सामने आपको खड़ा हो जाना है, और जैसे ही हम्म, फिर वो स्टार्ट बोलेंगे या फिर विसल बजेगी, हम्म, आपको स्टार्ट कर देना है। ओके, तो इसमें दो सजेशन रहेंगे। एक टाइगर स्विंग है, इफ यू नो अबाउट इट दीपक। हम्म, आपको एक अप्रेस्ट प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होगा, उसके बाद सामने एक रस्सी होगी, हम्म, आपको जंप करके उस रस्सी को पकड़ना है और फिर स्लाइड करके उस पर आपको नीचे आना है। हम्म, तो ये तो था तो इजी, लेकिन इस पे काफी लोग, मतलब आई थिंक 60 के 60 इस पे इंजर्ड हुए थे, उन सबके हाथ छिल गए थे। और हैवी होंगे वो। तो थोड़ा उस पे स्लाइड करके नीचे आने में हाथ थोड़ा छिल जाता है। तो इसके हम्म, बाद वो डबल जंप होता है। एक आपको एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है, हम्म, फिर आपको नीचे एक दूसरा प्लेटफॉर्म होगा उस पर जंप करना है, उसके बाद आप नीचे आओगे। दिस वॉज द सेकंड। फिर उसके बाद टाइगर जंप। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट आफ्टर बैलेंसिंग बीम, लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट टाइगर जंप पे किया था। बैलेंसिंग बीम क्योंकि कैसी इस होती पे है, कैसे मतलब एक उसके ऊपर चढ़ते हो ऐसे करके? हाँ, मतलब पोल कैसे? होगा, एक जैसे कि ये प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। ऐसा, अच्छा, ऐसे एग्जैक्टली यहाँ से आप सिमिलर, चढ़ोगे, एग्जैक्टली। कैसे दिखाऊं? या हाँ ठीक है, ऐसे होगा ना? राइट राइट राइट। थ्री, देयर वर 3 बैलेंसिंग बीम्स, या एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर फ्लैट था, राउंड था, ये बल्ली थी? राउंड, राउंड, अच्छा, okay, सिलेंड्रिकल। ओके, तो कितना या डिस्टेंस होगा तो अप्रॉक्स? 3 मीटर? डिस्टेंस वाज नॉट अ बिग डील। द मेन प्रॉब्लम वाज दैट बैलेंसिंग बीम की हाइट काफी अच्छी दे रखी है। ओके, गिरोगे तो चार एसएसबीज बार में फिर थोड़ा जाओगे, फिर हाइट, जाओगे, फिर जाओगे, राइट? ऐसा ही है हाँ ना? हाँ हाँ, गिरना, अगर आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है वो। अगर ओके, वेट ज्यादा है तो, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ के पहले तो बैलेंस बनाना है। तो पहले तो आप चढ़ो, फिर बैलेंस बनाओ, फिर आप चल सकोगे। तो ये उनके लिए काफी इजी था जो फिजिकली फिट थे, पर बाकी के लिए बहुत चैलेंजिंग था कितने लोगों ने किया बैलेंसिंग होगा भी। फिर बैलेंसिंग बीम? कितने लोगों ने एक बार में कर लिया होगा 60 में से, आप बताओगे approximately? मैंने, देखो, अगर आपने बैलेंसिंग बीम नहीं किया तो आप रिपीट नहीं कर सकते हो। अच्छा, मेरे ऐसा ग्रुप है? में शायद एक या दो लड़के, हाँ हाँ हाँ, अगर आपने 10 के 10 पहले नहीं किए तो आप आगे के रिपीट नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो उसको आप बार बार अगर कर ही नहीं आपने, सकते? नहीं नहीं यार, ऐसा कर सकते नहीं हैं नहीं क्या? नहीं, नहीं बार बार नहीं कर सकते हो। आपने अगर 3 मिनट के अंदर 10 के 10 कर लिए तो आप फिर उसके बाद दोबारा से कोई और कर सकते हो। नहीं, मान लो, लेकिन हाँ, वो भी वो नहीं दोबारा, जैसे कि मान लो आप कर रहे हो, आप बीच में गिर गए, देन आई थिंक यू कैन डू इट ना? हाँ तब कर सकते हो। हाँ, दैट यू दैट्स कैन री व्हाट आई वाज अटेम्प्ट। आस्किंग। दैट वाज, जब तक आप उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट ना कर लो तब तक आप उसे कर सकते हो। एक बार सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया तो आप उसको दोबारा पूरा कंप्लीट करने से पहले नहीं आ सकते उस पे। या तो अगर आप फिजिकली फिट उतने अच्छे नहीं हो तो पहले बाकी की कर लो, बैलेंसिंग बीम को सबसे लास्ट में रख दो। तो उसके बाद, ताकि आपने अगर 9 कर लिए हैं तो आप बैलेंसिंग बीम कर लो फिर। अब बैलेंसिंग बीम करने के बाद आप वापस से 10 पॉइंट वाले को दोबारा रिपीट कर सकते हो। 10 पॉइंट बैलेंसिंग वाला बीम, यही था अपना टाइगर स्विंग। बैलेंसिंग बैलेंसिंग बीम के बाद क्या था? बैलेंसिंग बीम के नहीं, ये ऐसी एक सर्कुलर टाइप का ग्राउंड है, उसमें ये लोग ऐसी अरेंज है, कोई ऐसा इनका पैटर्न नहीं है। नहीं ठीक है, आप जो जैसे नेक्स्ट ऑब्स्टेकल बता रहे थे ना, इसके बाद वो क्या बता रहे थे, कुछ बता रहे थे? हाँ तो पहले तो सबसे ज्यादा लोगों ने बैलेंसिंग बीम के बाद सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट लोगों ने किया था टाइगर जंप पे। टाइगर इसमें जंप कौन सा, गलती वो क्या जंप होती है करके कि, रस्सी पकड़ते हैं वही ना? टाइगर हाँ लीप जो रस्सी बोलते पकड़ हैं? के आपको स्विंग करके नीचे आना है। क्या अच्छा टाइगर अच्छा लिप अच्छा। अलग है।
टाइगर जंप में आपको रस्सी पकड़ा, फिर आपको ऐसे नीचे जंप करना है। एक इमेजिनरी लाइन होगी ग्राउंड पे, आपको स्विंग करके वो उसको क्रॉस करना है। नहीं नहीं, जैसे अभी आप जंप करके आ रहे हैं तो रस्सी पीछे पड़ गई, फिर एक गैप होगा वो कर लोगे ना, वो थोड़ी ना ऊपर वाला नहीं बता नहीं रहे ना। नहीं, ओके मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हाँ। इसमें क्या होता है कि आप पहले एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे अच्छा और अच्छा। नीचे एक स्टेप। एक खड़ा रहेगा आदमी कोई, या वो आपको एक रस्सी लाके आपके हाथ में पकड़ाएगा वो। अच्छा वैसे वाला है, ठीक है, समझ गया, वो आर्मी में जैसे या होता है। वो हाथ में हाँ हाँ हाँ, वो हाथ टार्जन में, जंप। बल्कि वो सेम आर्मी वाला ही एकदम एग्जैक्टली, जितने भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं सेम आर्मी वाले हैं। ठीक है ठीक तो है वो तो आपको हाथ में पकड़ाएगा, आपको स्विंग करके एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर देनी है। ठीक है, वो तो ठीक है, उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत। और फिर इसके बाद? लेकिन इस लेकिन इसमें मैक्सिमम का लाइन क्रॉस नहीं हो रहा था। अच्छा, तो उन लोगों ने दोबारा ट्राई किया उसको? सबने कुछ एक या दो ही थे जो रिकमेंड हुआ था। उसने 13 ऑब्स्टेकल्स किए थे ओवरऑल, उसने 10 तो कर ही दिए थे, उसके बाद हाँ। उसने 3 और किए थे। तो उसका तो काफी अच्छा था। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट तो ऑब्स्टेकल कुछ याद हो? इसके बाद स्क्रीन जंप होता है। स्क्रीन जंप, स्क्रीन अच्छा। जंप था, उसके एक प्लेटफॉर्म होगा ऐसा सा, आपको इस पे रन करना है, फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी, इफ यू कैन सी लाइक दिस। ओके। तो आपको यहाँ से स्क्रीन के ऊपर से जंप करना है प्लेटफॉर्म के बाद। ओके। तो एक फिर उसके बाद फिर एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म जिसके 1 स्कोर होता है, डबल डिच हो गया, डबल बैरल जंप हो गया, बर्मा ब्रिज हो गया। कमांडो वॉक काफी इजी है। एसएसबी भोपाल में क्या आता है कि जो प्लेटफॉर्म काफी पतला नैरो है, तो आप पैर उस पे एक ही रख सकते हो और वो शेक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ना वो शेक कर रहा था, और प्लेटफॉर्म भी काफी बड़ा, आप इजिली वॉक करके इसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसमें कमांडो वॉक में एक ट्रिक क्या है कि यहाँ पे लोग गलती बहुत करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें कलर कोडिंग होती है, कलर लॉ होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में। आप उस ऑब्स्टेकल को ना करो, एक बार को चल जाएगा, लेकिन आप उस रूल को वायलेट मत करो। तो इसमें क्या है कि आप जब चढ़ते हो कमांडो वॉक पे, तो आप जब आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो, प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए फाइनली आप जहाँ पकड़ते हो, उस जगह पे आपको दिखेगा नहीं, पर वहां पे रेड लाइन होती है, पीछे की तरफ समथिंग जो भी है। या पीछे की तरफ। अगर आप ओके। किसी भी फोटो में देखिएगा कमांडो वॉक में, तो उसमें एक रेड स्ट्रिप होती है। तो लोग उसको टच करते हैं। मैंने कैंडिडेट से पूछा था तुमने किया, तो उन्होंने कहा हमने ध्यान नहीं दिया, टच पे टच तो हो ही गया होगा। तो तो उन्होंने कुछ पहला रूल, चिल्लाने के लिए कहा था उधर, जैसे करते हैं वॉर क्राई समथिंग लाइक दैट, कुछ था? कमांडो यू हैव टू शाउट कमांडो। ओके। एंड लेटर ऑन what the obstacle? बर्मा ब्रिज, आफ्टर दैट देयर वाज बर्मा Burma Bridge. ब्रिज। This one, right? We will या just या थोड़ा सा टाइम लगता है बट इजी है। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक 10। उसका डबल डिच में क्या है कि लगता है कि काफी बड़ा गड्ढा है और इतना क्रॉस करना मुश्किल है, लेकिन आप एक बार जंप करोगे तो हो जाता है। बस आप एक बार ओके। आंखें बंद करके जंप कर लो, रोप को कैच करो, आप इजिली क्रॉस कर जाओगे। सो एक यहाँ पे दीपक एक सजेशन देना चाहूंगा मैं, क्योंकि जो मैं लास्ट एसएसबी मैंने गलती किया था वो ये था कि जब मैं फ्रेशर था, तो मैं रोप्स वाले ऑब्स्टेकल में क्या गलती करता था कि मैं ग्रिप बनाने से पहले जंप करता था। आप इसके सभी एसएसबी इसमें सभी ऑब्स्टेकल्स में ये जरूर करना कि आप जब रोप्स को पकड़ते हो तो पहले एश्योर करो कि हाँ आपकी ग्रिप बन चुकी है, उसके बाद आप आगे जंप करो। ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर सब गिर जा रहे थे इसकी वजह से। ओके, तो इसमें अब वो टाइगर जंप वाला बोलते हैं ना, जो रस्सी पकड़ के हाथ छिल जाते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट? टाइगर स्विंग। टाइगर स्विंग। ओके। सो उसमें तो काफी लोगों के हाथ डैमेज हुए होंगे, हाथ छिल जाते हैं उसमें, वो वेट बॉडी वेट नहीं ले पाते, काफी कितनों के होंगे अप्रोक्सीमेटली? काफी जो रिकमेंड हुआ था चेस्ट नंबर 20, उसका तो यहाँ पे पूरा एकदम स्किन खत्म हो गई थी, यहाँ उसका तो काफी ज्यादा उसको डैमेज हुआ था। तो उसके भी हाथ, मतलब उस वो भी मतलब दिक्कत आई थी। कितना वेट होगा उसका, हैवी था वो लाइट? उसका बीएमआई थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, तो मतलब रस्सी पकड़ के नीचे आना चाहिए उस लाइट का, कोई ऐसा था जो रस्सी पकड़ के आराम आराम से नीचे आया? हाँ, मैंने पूछा था कुछ कैंडिडेट से, तो उन्होंने बताया था कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमारा वेट हल्का सा ज्यादा है, तो हम और हम टाइम बचाने के लिए भी हम स्लाइड कर जा रहे थे।
तो स्लाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके पास आपके मसल्स इतना स्ट्रांग है तो आप क्या करो कि आपने रॉप को कैच किया, फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आओ। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हो तो हाथ तो नहीं छिलेंगे। ओके ओके, और बताइए नेक्स्ट। इतने सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स तो के हुए, राइट? या ये 10 के 10 ऑब्स्टेकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। या और ये सारे के सारे आर्मी वाले सेम थे, एयरफोर्स वाले नहीं थे। जो आपने कहा था कि वो टायर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था, सेम एग्जैक्टली डिटो सेम ऑफ द आर्मी। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे 100% कंप्लीट हो गया था हमारा सब। साइकोलॉजी हो गया था, मेरा इंटरव्यू हो गया था, और जीटीओ भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे, ये थर्ड डे था, अब नेक्स्ट डे हमारा फ्री था। लेकिन स्टिल हमें जाके वापस से 103 में बैठना है, क्योंकि बाकी ग्रुप्स का जब वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल चलता था तो हमें रूम में बैठना है, क्योंकि विंडो से साफ साफ दिख जाता था वहां पे क्या हो रहा ओके। है। या फिर लास्ट डे वाज फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस तो हमें सुबह सुबह कह दिया गया था कि 7 बजे से सबको आ जाना है, अगेन इन द 103। तो हमें सबसे पहले तो लेके जाया गया 7th फ्लोर पे, जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके अंदर में लेके जाया गया, 60 के 60 लड़कों को एक साथ। और वहां पे जो नहीं नहीं, वो जेसीओ अभी नहीं, ऑफिसर, जैसे इसमें पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी टास्क हुए। नहीं नहीं वो सब नहीं है यहाँ पे, ओनली ये क्या इंडिविजुअल है? ऑब्स्टेकल्स आर देयर। ओके, सो सिर्फ उन लोगों ने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कराया, पीजीटी, एफजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, कमांड टास्क था कुछ? नहीं नहीं, कमांड कुछ भी टास्क भी नहीं नहीं था, हुआ? ओनली आउटडोर। आउटडोर में केवल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया वहां पे कि दूर दिख रहा था कि ये सब के भी तैयार किए जा रहे हैं। स्नेक रेस का तो रेडी है, मुझे लग रहा है अब अगला जो बैच आ रहा है उसमें स्नेक रेस 100% होगा। दे आर इन द प्रोग्रेसिव स्टेज, सो नहीं नहीं, एवरीथिंग शुड स्नेक रेडी। रेस कंप्लीट हो चुका है। या बट या पीजीटी एचजीटी ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग मेड। कब गए थे आप लास्ट टाइम? अभी ये एफएसबी के लिए ना, ये 6 मार्च वाला बैच था मेरा। 6 मार्च, अभी गए थे। या Okay, so your GTO is that much only, right? Nothing more than that. या जीटी में ओनली आउटडोर, जीटी में ओनली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। Okay. Now, next, what happened? इसके बाद अपना कॉन्फ्रेंस था 5th डे पे। तो सुबह 7 बजे हम लोग आ गए थे रूम नंबर 103 में विद लगेज। आपको अपना लगेज लेके आ जाना है, और जिसने ब्लैंकेट्स वगैरह लिए थे आपको उसका पेमेंट करना है। जिसका ट्रैवल अलाउंस था उसको ट्रैवल अलाउंस मिल जाएगा। इसमें ट्रैवल अलाउंस पे एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एसी का ही टिकट लेके जाइए, क्योंकि अगर आप एसी का लेके जाते हैं तो आपको फिर एसी का ही वापस का रिटर्न का मिलेगा। अगर आप स्लीपर से गए हैं तो आपको एसी का नहीं मिलेगा, आपको स्लीपर का ही वापस से मिलेगा। तो क्योंकि वहाँ पे कई लड़के थे तो एसी का उनको मिला, और जो स्लीपर से थे उनको स्लीपर का ही मिला। हाँ इसके नहीं, अलावा आपके फिर पास है आपको, अवेलेबिलिटी, वैसे लेके जाओ, लेकिन वही है, आप बर्डन क्यों डालना गवर्नमेंट पे, जो आप जा सकते हो, आप इट्स ऑन यू टोटली एट द डे, how you want to take एग्जैक्टली those things. हाँ And, okay, then, राइट। then what happened in the conference? What was the lead? What was the procedure? They proceeded with the way, please. तो कॉन्फ्रेंस में हम जब वहाँ पे गए तो सबसे पहले 65 स्टूडेंट्स जो थे, कैंडिडेट्स, इन सबको पहले डेमो दिखाने के लिए लेके जाया गया इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, कि कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको विश करना है, कैसे आपको बैठना है, और वो क्या बोलेंगे तो आपको बाहर जाना है। और फिर उसके बाद कैंडिडेट से बुलवा के उनको मॉक करवाया भी किया कि आप आओ बैठो, आप वो करो, फिर जाओ। तो ये डेमो जब हो गया तो 8 बजे से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया। डेमो के बाद तो 1-2 मिनट सबका, एक दो सबका मिनट ही चल रहा था कॉन्फ्रेंस। ठीक है। या 1-2 मिनट कॉन्फ्रेंस चल रहा था सबको। और चेस्ट नंबर 20 का उस टाइम पता चल गया था, उसका 10 से 15 मिनट चला था कॉन्फ्रेंस। जिसका भी जो भी रिकमेंड हुआ, इनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा ज्यादा चला था। उनसे बेसिकली वो इंटरेस्टेड थे कि आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हो, क्या पैशन है आपका, क्यों करना चाहते हो, और आप कैसे जस्टिस करोगे उसके साथ। और बाकी उससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपका स्टे कैसा था, आपने कैसे यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज किया, आपने कितने फ्रेंड्स बनाए, खाना कैसा था, एनी फीडबैक एक्सेट्रा। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, हम सब आके वापस 103 में वेट कर रहे थे। 103 में वेट करते टाइम फिर ऑफिसर्स ने बोला कि आपका रिजल्ट आ रहा है 5 मिनट में। रिजल्ट आता है, और जो चेस्ट नंबर्स उनके थे उनको अनाउंस किया गया कि दीज आर द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। एंड आफ्टर दैट फिर
ये हो गया कि उनको मेडिकल्स के लिए फॉर्म फिल करना है, तो वो लोग कितने Google कितने Authorities से रिकमेंड believe हुए कर थे सकते उसमें? कितने रिकमेंड हुए थे आपके बैच में? एक ही हुआ? हैं। 3 ओके, तो उनसे कॉन्फ्रेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ बताया उन्होंने, कुछ डिस्कस किया मुझे? हाँ, चेस्ट नंबर 20 से बात हुई थी, तो उसने कहा था कि वो पूछ रहे थे कि एक्चुअली उसका लास्ट अटेम्प्ट था ये कोस्ट गार्ड का, ओके। तो उससे पूछ रहे थे यही सब कि आपका ज्वाइन करना है आपको, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों ज्वाइन करना है, related to his passion, that why he want, why he is more interested in coast guard. ओके, सो उससे ये सब चीजें पूछी तो उसने बताई। उसका नंबर है आपके पास वैसे? नहीं, मेरा नंबर तो नहीं है, बट ग्रुप है तो देख लेंगे। सो फिर आपका ये कौन सा कॉन्फ्रेंस आउट था ये? सेकंड। सेकंड था ना? ओके, नो इश्यूज। अभी तो बहुत जर्नी लंबी है यार, अभी तो करते रहो, प्रिपरेशन के साथ होता रहेगा, नॉट अ बिग डील टू राइट। डील विद ऑल दोस थिंग्स, राइट? एंड नो नीड टू लूज हर्ट, इट्स जस्ट अ फकिंग जर्नी, नो नीड टू really go. I told you No, that no, 17 is with each, yeah, with every attempt I am learning a lot of things, I am improving day by day, I'm yes, getting to yes. know a lot of new things, that how to improve your personality. Things will take time, but it will happen over time, right? Because things will not change overnight. Things take time to change things over Of time. course. And anything you would like to say to audience, maybe regarding PSB or FSB, any 2-3 points which you feel like the audience should know from your point of view, where you did mistake or something, that the whole interview would have resulted in the selection. So please. Of course, Deepak, I would like to say about the PSB, क्योंकि वहाँ पे जब मैं PSB में गया था, मैं कई लड़कों से मिला था, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग OIR में आउट हो गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे या फिर वो बेकार थे, उनको आता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही पीएसबी का OIR का कोई ऐसा रूल है कि हाँ सिर्फ टॉप के कैंडिडेट्स को लेना है। वहां पे अगर 90 ने रिपोर्टिंग की है और 90 के 90 ने कट ऑफ पर्टिकुलर क्लियर कर रहे हैं, तो 90 के 90 पीपीडीटी में जाएंगे, ठीक है। बट वो लोग उन क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं है कि क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझसे बाहर आके पूछा कि यार वो जो सेट 7 था या सेट 3 था, उसमें करना क्या था। तो आप अगर आपको ये नहीं पता है कि वो करना क्या है उसके अंदर, तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो इसलिए आपकी जो वीडियोस हैं फॉर द OIR स्पेशली, वो बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल अगर आपको पीएसबी के लिए जा रहे हो, वो करके जाओ, ठीक है। OIR कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ऑफिसर्स भी वहां पे कहते हैं कि ये इट्स जस्ट अ सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट, एनी सिंपल सेन पर्सन कैन क्लियर दैट। बस एक कंडीशन है कि आप प्रैक्टिस कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, यू विल क्लियर दैट। पहले अवेलेबल नहीं था, but now it is available. Many people are making Exactly. videos on that also. So just because Yeah. of your support, I would be able to put a lot of videos regarding this PSB. The thing is that I'm looking forward to your support for FSB also. And soon we are going to launch a series where we can prepare you for your written exam. Now they included the new one more screening procedure, which is called CG set, right? What is that? CG set, right? You filled the form, right? Yeah, I have applied for that. I think admit cards are to be out on the 23rd March or 24 March. Okay. So just because of my busy schedule, I'm not able to put much time over here. Otherwise, I had a plan. So I asked some people, if you have some knowledge on any topic or you want to teach any topic, you come up here. I'll give you some 30% share for 3-5 year, whatever is that, depends on the quality. Because if I'm making money, you should also make money, right? So the more quality content you give to the audience, the more they like, the more you make money. And it's like you're learning, you're preparing, and you're teaching, and you're getting money off. You have multiple things happening at a time, right? And so, Shivam, anything else you want to say to about a channel or maybe to about the people, please? Yeah, one more thing. It's especially for the GD, whether it is for the PPDT GD or normal GD. Try to cooperate, क्योंकि GD में भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको पास या फेल करना है वहाँ पे। अगर आपने वहाँ पे कॉपरेट किया, आपने वहाँ पे पॉइंट्स रख लिए, तो आप सबके सब 17 out of 17 can be selected, 15 out of 15 can be selected. But the thing that we do is हम अपने पॉइंट एम्फसाइज करने के चक्कर में पूरे ग्रुप में एक फिश मार्केट क्रिएट कर देते हैं और उसमें फिर मैक्सिमम लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं वहां से। तो ये मैंने अपने 3 स्क्रीनिंग्स में देखा है मैंने कि अगर आप कोऑपरेट करते हो
आप सब स्क्रीन हो सकते हो, और अगर आप लोग रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, फिश मार्केट क्रिएट करते हो, तो आप सबके सब स्क्रीन आउट होगे. So try to cooperate as much as you can. Yeah, you're right. And with this to audience, I like the people like future officer, I would say that, not audience. So I have some of my friends who recently, safely, came back from Russia for Ukraine and Russia war kind of situation. So if you guys want me to, bring them on the channel to give you the ground reality of that particular place. So it's a humble request. You can drop the comments, or maybe you like more, just, put any comment. Like I get to know whether you want that person to be on our channel. So, she or he can tell you what just, happened on the ground over there. So maybe that will give you a little bit edge, when you're having discussion about Russia or something, maybe topic, just you told you had the GD on that particular topic, right? Yes, sure. Yes, sir. Yeah. So if you guys, if you, my future officers, if you're interested, want me to bring, even I can bring one African also. He can, give you a little bit idea about the Africa countries, how many countries are there, what are demographic, and how their business work, what all those things, lot of things. So if you want me them, like 2 people to bring on this channel, please do let me know by commenting on our video, and please do comment, subscribe, and like. And Shivam, thank you so much for giving this wonderful opportunity to Thank you, interview Deepak. you. Right, because it's not about the recommendation. Some people are not coming forward to help, but just because of your, I would say, this action that people, the students get to know, this about the GTO and all, because no Yeah. one is coming forward to help. But you did. That's a really, great gesture from your end. Thank you so much, Shivam. Thank you, Deepak. Okay. Jai Hind, Jai Bharat. Take care. Jai Hind. Jai Hind.